क्या विशाल अंगुराना की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी? आपको क्या हो गया? कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। पहला जो इसको यहाँ पे आंख पे मारा और इसको पकड़ के किसी दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ किया गया, हाँ मारा गया। और उसकी यहाँ से हेड इंजरी क्रॉस थी। कि क्या है विशाल अंगुराना की मौत की वजह? पुलिस इसकी जांच कर रही है और पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विशाल अंगुराना की मौत छत से गिरने की वजह से हुई है या फिर विशाल अंगुराना की हत्या की गई है। विशाल अंगुराना के परिवार के लोग जो कह रहे हैं वो भी ऑडियो आपको सुनाएंगे। टेलीफोन पर विशाल अंगुराना के परिवार के सदस्यों से हमारी बात हुई है, उनके मामा से हमारी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। और जिस पक्ष पर इल्जाम लग रहे हैं वो पक्ष क्या कहता है वो भी आपको सुनाएंगे। दोनों पक्षों से हमारी बात हुई है, लेकिन कहानी ये है कि क्या विशाल की हत्या हुई है या फिर विशाल की छत से गिरने की वजह से मौत हुई है, ये एक सवाल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾ ਨਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਖਜੂਰੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹ 'ਚ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਖਜੂਰੀਆ। ਓਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਡਰੁੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕੰਮ ਦੇ। ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਡੇ ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਉਸਦੇ ਹਾਲ ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਾ ਜਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੰਬੇ ਪਿਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਲੋ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਖਜੂਰੀਆ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, 1-2 ਦਿਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਲੈ ਲਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਟੂਏ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਵਰ ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਲੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਉਸੇ ਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 53 ਹੂੰ 53 ਹੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਜਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਂ 1:53 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਤੇ ਵੀ ਟੈਲ ਬ੍ਰਦਰ ਰਮਨ ਬਰੋ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਸੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਲਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਜੁਨੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹਾਲ ਚ ਖੜੋ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰ ਕੰਮ ਤੇ 22 ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਠੂਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆਉਂਗੇ ਜਦ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਬ ਵੀ ਖਾਧੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਕਿਤੇ 20 ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਪਰ ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਠੂਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ MLC ਕਰਵਾਈ ਸੀ MLC ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦਾ ਲੋਕ ਨੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਰੋ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਗੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਸਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਲਟਡ ਸੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਮਾਰਕਟਾਈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਤੇ ਘਸੋਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਫੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਦਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ SHO ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ
विक्रांत जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ विक्रांत जी, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ, मीडिया से, संसार सिंह। हाँ जी सर, बोलिए। 2 मिनट बात हो सकती है सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक मामला हुआ है सर आपकी बिल्डिंग में, ये हाँ जी, हाँ विशालम जी। खुराना वाला। जी, जी। मैं कुछ जान सकता हूँ सर, क्या हुआ है हाँ ये? जी। तो क्या हुआ कि मंडे को पापा को कॉल आया था सुबह 8 साढ़े 8 के करीब, जी, जो पड़ोसी हैं बिल्डिंग के जो पीछे रहते हैं उनका, कि उनका कहना है कि वो लड़का जो है, जो रहता है ऊपर, वो हमारी छत पे गिरा हुआ है। जी, तो फिर पापा गए वहाँ पर, उन्होंने, जिसको हमने रेंट पे दिया हुआ है, महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी, जी, उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसा-ऐसा है। फिर उन्होंने फ़ोन किया था शायद अपने उनको, उनके घरवालों को। तो हुँ, उनके घरवालों से 2-3 लोग आए, फिर उसे वहाँ ले गए जीएमसी कठुआ में। जी, वहाँ से उन्होंने आगे रेफ़र किया होगा, फिर उनको आगे अमृतसर ले गए। जी, ये केस वैसा हुआ। फिर उसके नेक्स्ट फॉलोइंग डे ऑन ट्यूसडे इवनिंग पापा को कॉल आया नीचे थाने से कि कंप्लेंट उन्होंने दी है आपके लिए, हुँ, कि ऐसा-ऐसा उनको लगता है। हुँ, तो फिर वो गए, उन्होंने अपना बयान दिया। पुलिस आई, उन्होंने अपनी जो भी तफ्तीश की थी वो अपनी करी। वो हुँ, उनके पास इंटेरोगेशन की चल रही है। जी, देन ऑन आज फ्राइडे है, कल थर्सडे, कल डेथ हुई है शायद उसकी लड़के की। हुँ, हाँ, तो कल डेथ हुई है उनकी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो मीडिया में बाइट दी है, यही जो उनके एलिगेशंस वगैरह हैं, हुँ, वो उन्होंने फॉलो अप किए हुए हैं। हुँ। बस यही है मामला। लेकिन जो परिवार सर कह रहा है, वो आपने जी, सुना? जी। हाँ, मैंने सुना सर। मतलब परिवार के जो एलिगेशन है, और मतलब 53 कॉल्स वो पीसीआर को या पुलिस सर द कंट्रोल रूम थिंग इज़, को सी, कर रहे हैं। मैं अब यही नहीं कहता कि वो काम है पुलिस का इन्वेस्टिगेट नहीं, मैं करना, समझ रहा हूँ आपकी है बात। ना? देखिए सर, मैं आप 53 कॉल्स आपको पुलिस को आप कर रहे हैं, ठीक है? आप जी, भी, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू नो एवरीथिंग वेरी वेल। जी। अगर आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं, 53 कॉल्स में से कई कॉल लगती हैं, कई नहीं भी हुँ, लगती हुँ, हैं, है ना? हुँ, हुँ, और कॉल्स की ड्यूरेशन होती है, इवन इफ इन केस इट्स बिज़ी, तो बिज़ी 3, 4, 5, 10 सेकंड में कट जाना चाहिए हुँ, मैक्सिमम। अगर जी, कॉल भी लंबी जा रही है, बात भी हो रही है, तो वो रिकॉर्ड पुलिस के पास भी रहेगा। जी, अगर 53 कॉल्स के बाद भी अगर पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती, फिर वो भी देखना चाहिए। जी, एक चीज़ और सर वो भी है कि देयर क्लेमिंग कि कुछ मैसेजेस भी हैं। उस मैसेज बिल्कुल। में उन्होंने मेंशन किया है किसी खाना बनाने वाली आंटी एंड उसका हस्बैंड एंड ऑल, राइट? जी, यस। तो वो तो हमें नहीं पता ना, वो कब खाना बनाने वाली उनकी कंपनी का जो मेन ऑफिस है उसमें काम करती है। हुँ, इस बिल्डिंग में तो कोई नहीं आता, हुँ, ठीक है? और जो हमारे पास एविडेंस था, जो उनका क्लेम है कि शायद अंकल ने किया हो मेरे फादर के लिए, जी, उन्होंने, हमने तो पुलिस को फुटेज दे दी है पूरी की पूरी। उस ओके। बिल्डिंग को एक ही सीसीटीवी कैमरा रास्ता, था वहाँ पर? हाँ जी था। उस ओके। बिल्डिंग को एक ही रास्ता है, ठीक है? हुँ, हुँ, और जहाँ से वो गिरा वो पीछे ऊपर टॉप में, वो नीचे का जो एरिया है वहां से बिल्कुल स्पार्ट, कोई रास्ता नहीं है उस ऊपर जाने का, एक ही इकलौता रास्ता है। हुँ, उस रास्ते की मैंने फुटेज पूरी दे दी हुई है। हुँ, उसमें जो मेरे फादर साहब हैं, वो संडे को शाम को 4:36 अराउंड, इस टाइम के अराउंड वो बिल्डिंग से एग्जिट कर रहे हैं। हुँ, बाकी वो पुलिस का आगे फ्रंट से बैंक भी है, उसका भी कैमरा होगा, वो देख सकते हैं आराम से कि हुँ, कब गए कब आए, वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमने देखा है फुटेज में और पुलिस को भी दी है, हुँ, उसमें 7:39 20th को शाम को विशाल अपने हाथ में एक ब्लैक का लिफाफा और सामान लेके ऊपर गया अकेला। ओके। दैट वाज द लास्ट टाइम। उसके अलावा पूरी रात कोई ऊपर नहीं गया, हुँ, ना ही कोई नीचे आया। हुँ, नेक्स्ट डे जब कॉल आई है उसके बाद फादर साहब ऊपर गए हैं, उस दिन हुँ, बारिश हो रही थी, तो वो फुटेज पूरी है। ओके। मतलब जी, जब उसकी डेथ हो रही है या वो गिर रहा है छत से नीचे, जी, जी, जी। उस टाइमिंग को अगर हम मैच करें तो उस वक़्त आपके पिताजी वहाँ पर नहीं थे। नहीं, फादर साहब वहाँ नहीं थे। इनफैक्ट उस बिल्डिंग में ऊपर कोई गया ही नहीं, क्योंकि जो रास्ते, जो कैमरा हमने, जो फुटेज दी है उसकी इनफैक्ट 10 दिन की फुटेज रखी है पूरी की पूरी। वो ओके, डीवीआर भी हमने सिक्योर कर लिया है, ठीक है। बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमने पूरा रखा हुआ है। देखो सर, जिसने एलिगेशंस देने हैं, हम उसको नहीं कहते वो क्यों दे रहा है, क्या दे हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। उनके घर पे डेथ हुई है, जी, दुःख होता है, जी, फॉर श्योर होता है। जी। अब वो एलिगेशंस दे रहे हैं, वो आउट ऑफ एंगर दे रहे हैं, हुँ, या डाउट्स में दे रहे हैं, या हुँ, क्या पता विशाल ने कभी उनको कुछ बोला हो ऐसा। हुँ। वो पुलिस क्योंकि का एक काम एक है वो। रिकॉर्डिंग की बात वो कर रहे हैं कि वो जो फ़ोन कॉल उसने किया है अपने कज़न जी, को, जी, जी। सर उसकी वो मेरे ख्याल से जो मैंने जिनसे बात तो होती ही है, ऐसी बात नहीं है, जो मीडिया से भी आती हैं, हुँ, तो उन्होंने बताया कि शायद वो कॉल संडे की है कि मुझे आप ले जाना, या मैं मंडे को, संडे को आऊँगा या मंडे को आऊँगा, हुँ, मुझे ये निकाल रहे हैं, हुँ। राइट? तो निकाल रहे थे उसमें सर क्या उसे? सर ये आज से नहीं निकाल रहे, 4 महीने पहले से जो महालक्ष्मी फाइनेंस के जो मैनेजर हैं, आप हुँ, उनसे भी बात करना। जी, उनको 4 महीने से हमने लगातार बोला है कि ओके, आप इन्हें ले जाइए, बिकॉज़ ये अकेले यहाँ बैठ के शराब पीते रहते हैं। इफ इन केस इन्हें कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए इश्यू हो जाएगा। ओके, ये आज आप से नहीं है। कंप्लेन आप कर चुके हैं पहले उन्हें? हमने उनको फाइनेंस वालों को बोल रखा हुआ है, या आप उनसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जब पुलिस आई है तो उन्होंने अपनी इंटेरोगेशन करेंगे, वो हुँ, आस-पास जितने भी एरियाज़ हैं, लोगों को पता होता है बिहेवियर क्या है किसी का, जी, जी, वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा सामने।
ओके। एंड द रेस्ट उसने अपने घर पे क्या बोला उसको मैं क्लेमेबल नहीं हूँ। एंड द अनदर चीज सर, रिकॉर्डिंग अब जो आई है अगर है भी इनके पास, वो तो पुलिस आइडेंटिफाई करेगी कि जेन्युइन रिकॉर्डिंग है भी है कि नहीं है, राइट। अब वो अगर फोन कॉल रिकॉर्डेड कॉल है तो एविडेंस में वो कॉल फोन में होनी चाहिए जिस फोन से रिकॉर्ड हुई है, जी। या वो मैनिपुलेटेड है या उन्होंने ही रिकॉर्ड करके बाद में रखी है अपने पास। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, राइट। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, देन आफ्टर इन केस कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन एक चीज आप कह रहे हैं कि उस दौरान हाँ जी, कैमरा की जो फुटेज है, जी जी, सिवाय उस विशाल के हाँ जी, कोई ऊपर नहीं गया, नहीं गया ना ही नीचे आया तो ना कोई नीचे आया। जी। तो फिर ये जो सारी घटना जो बताया हाँ जा जी, रहा हाँ जी, जी जी। है, ये क्या है फिर, मतलब मुझे सी अब मैं सर आपको क्या इसका लगता है? देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म, अब जो जिस जगह पे वो जिस जगह से वो गिरा है ना, हम्म, जो जिस छत पे वो गिरा है वो इट इज ऑन द राइट साइड, हम्म, ठीक है, हम्म, राइट साइड पे है। और बिल्कुल अगर स्ट्रेट कोई गिरे या किसी को भी अगर गिराया जाए तो बिल्कुल नीचे आना चाहिए, वो घर पे नहीं बिल्कुल गली में गिरेगा। हम्म, वो तभी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे शायद रात को वो फोन पे हो, शायद हम्म, किसी से बात कर रहा हो या मैसेज कर रहा हो, हम्म, या वो बैठा हो वहां पर हम्म, एंड ही स्लिप्ड और मे बी ही इज इंटॉक्सिकेटेड और कुछ किया हो। वो तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ ही जाएगा। जी। ये मेरा मानना है, हो सकता है पॉसिबिलिटी। या उस दिन बारिश भी बहुत हुई थी, हो भी रही थी, शायद स्लिप ना कर गया हो, शायद वो उस हम्म, तरफ से टहल रहा हो हम्म। और स्लिप करके कहीं वो उस तरफ से ना गिर गया हो। लेकिन आप ये अब कह रहे हैं कि 10 दिन की सीसीटीवी हाँ जी, फुटेज आपके पास है, जी जी जी। जिसमें ये क्लियर है कि जब ये चीज हुई है, ये घटना हुई है, जब उसकी सी जो हमसे पुलिस ने मोस्टली मांगी है वो उन्होंने मांगी है हमसे संडे की प्रॉपर डे की, हम्म, हम्म, और नेक्स्ट डे जब वो उसकी वहां मिलता है दूसरे के वहां से लेके शाम तक की, ओके। ठीक है, वो हमने पूरी रखी है। हम्म, इनफैक्ट फॉर द सेफ्टी रीजंस मैंने पिछली रिकॉर्डिंग्स भी अपने पास डीवीआर सेव करके रखा है, हम्म, जैसे उनके एलिगेशंस हैं कि कोई आता है जाता है, हम्म, वो भी हाँ, प्रूफ करने के लिए कि इनफेस कोई आता है कि नहीं आता, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है आराम से। जी। या वो सही, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, सपोज आप ही हो, हम्म, इफ इन केस यू आर स्टेइंग समवेयर एंड आपका जो मकान मालिक है वो आपको निकालना है या उसका कुछ भी इशू है, हम्म, ठीक है। अब आपको अपने घर पे बताना है, इफ इन केस यू आर डूइंग सम अल्कोहलिज्म में हो या ड्रग्स में हो, कुछ भी हो, हम्म, तो आप अपने घर पे बोलोगे कि मैं यहाँ पीता हूँ बैठ के, हैं मैं कुछ नशे करता हूँ इसलिए मुझे निकाल रहे हैं। हम्म, हम्म, व्हाट विल यू डू? यू विल मेक एन एक्सक्यूज, राइट। हम्म, अब पॉसिबिलिटीज ने क्या पता उसने एक्सक्यूज बनाया हो, हम्म, अब ये भी नहीं पता। अब उसने मेंशन किया है कि मालिक, राइट। हम्म, हम्म, अब वो मालिक उसकी महाफिनांस कंपनी वाला है हम्म, या बिल्डिंग का ओनर है, हम्म। मालिक तो दो भी हो सकते हैं ना, बिकॉज ही पर वाज वर्किंग फॉर। इतने दिनों की जो फुटेज की आप बात कर रहे हैं, उस बीच में उस फाइनेंस कंपनी का ऑनर या कोई लोग उसमें आए, उस बिल्डिंग के अंदर एंटर किया उन्होंने? सी जो उनके लिए आते थे लोग, वो तो पुलिस अपने आप देख लेगी खुद ही, हम्म, उनके पास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हम्म, जो उन्होंने हम पे, मेरे फादर साहब एलिगेशंस लगाए हैं, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दोस थिंग्स। ओके। पहली तो चीज उनका कहना था कि उन्होंने कुछ भी किया, ही हम्म, वाजंट प्रेजेंट। सेकंड, हम्म, उन्होंने जो मैंने इनफैक्ट पढ़ा, उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया या जो भी हम्म, वल्गर वर्ड दे हैव यूज्ड, जी, वो अब उस पे मैं अगर बाइट देना शुरू कर दूं वो भी हम्म, गलत हो जाता है। आई एम नॉट हम्म, सपोज टू गिव इट, ठीक है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस विल फाइंड द रीजन हम्म, जो भी है। अगर हम्म, कल्प्रिट्स हैं, मैं बोल रहा हूँ दोनों पक्षों को प्रॉपरली आप करो। इनफैक्ट आई वांट टू से कि जो फोन है विशाल का, जी, वो घर वालों के पास है अभी भी, हम्म, वो उन्होंने पुलिस को जमा नहीं करवाया। इफ इन केस इसकी डेथ थर्सडे को हुई है, ट्यूसडे शाम को अगर ये कंप्लेंट लिखवाने आए हैं तो उनको फुल मेरे ख्याल से फोन देना चाहिए था, फिर एज एविडेंस, राइट। जी, उन्होंने फोन नहीं दिया। और फोन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हम्म, बट उस फोन में जो मैसेजेस उसने भेजे हैं कि वो मेड वाला, वो सेंड ही नहीं हुआ है। वो सेंड ही नहीं हुए हैं। हम्म, एंड सर आप भी शायद फोन इतना बेसिक सबको ही पता है, इफ इन केस अगर हमारा फोन ऑफलाइन पे हो या नेटवर्क में नहीं है या सिम हम्म, नहीं है, हम्म, अगर हम उसकी डेट चेंज करके ओपन करें तो शायद उस डेट का मैसेज आ जाएगा बट डिलीवर नहीं होगा। हम्म, वो शायद बाद में भी किया जा सकता है, बिल्कुल। राइट। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी अपने हिसाब से कि वो मैसेजेस थे कि नहीं थे। हम्म, अगर थे, जेन्युइन थे, तो वो मैसेज सिंगल टिक पे भी नहीं गया, डबल टिक भी नहीं गया। हम्म, अगर वो उस टाइम पे पुलिस को कॉल कर रहा था, मीन्स उसका फोन एक्टिव था, हम्म, तो उसका वो मैसेज क्यों नहीं जा रहे थे? हम्म, वो नेटवर्क ट्रैंगुलेशन में सारा ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, किस नेटवर्क में था, किस रेंज में था। हम्म, इनफैक्ट पीपल कैन प्लीज कैन ऑल्सो फाइंड ना कि उस टाइम पे उसके आसपास फोन कौन से एक्टिव थे, मेरे ख्याल से वो भी शायद चेक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा वो। हाँ, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेट आराम से कर लेगी। हम्म, बाकी रेस्ट जो घर वाले बोल रहे हैं उनके साथ हमारी संवेदना पूरी है, हम्म, उनका बच्चे की डेथ हुई है, हम्म, बट वो एलिगेशंस लगा रहे हैं किसी फॉल्स बेसिस पे, वो चीज गलत है। मतलब वो बेबुनियाद है, अभी ये कह रहे हमारे देखो सर, हमारी तरफ से तो पूरा डिनाइल में है। हैं।
हम ओपनली इसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज दुख है, उनको हक है पूरा इन्वेस्टिगेशन का। जैसे उनके पॉइंट्स हैं पुलिस को वो भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, देखने चाहिए, और उन्हें हमारे भी नहीं रखने चाहिए कि हम जो चीज दे रहे हैं उनको भी रखें। बाकी कंसिडरेशन उनकी अपनी है, पुलिस जैसा चलाए, जैसा इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाकी वो खुद ही सामने आ जाएगा। बाकी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जाएगी थोड़ी दिनों में, वो उसमें भी आ जाएगा कि ही वाज इंटॉक्सिकेटेड और नॉट। ओके।